Hello everyone. So it's 8 a.m. in the morning and we will be starting with our day 17 of our 60-day study with me challenge for placement and internship preparation. Before moving on to the routine making part, first note down all the tasks that you have to do today. The two main tasks is the DSA, under which we will be doing trees, and the second is the practice of SQL command. Now since we are done with the routine making, we will be moving on to the problem solving. So today we will be solving 6 questions of trees and the questions are displayed on the screen. So let's get started.
part, I solved all the 6 problems that we decided for today, and now we'll move on to the SQL command practice, which I will be doing on W3 schools. So let's get started. SQL command practice for today. We're gonna pick this topic again tomorrow. People most often forget this part, like practicing SQL commands in depth, because it is actually important for the interview and the OS. Also, for practicing SQL commands, I generally practice from W3 schools, and then for further practice, like for better questions, I go on either HackerRank or LeetCode. And W3 schools is most likely going through all the SQL commands. It's like doing the exercise there and then practicing questions on the HackerRank for SQL commands. Okay, so I personally think that keeping this SQL queries side strong gives you an edge, where like companies often ask these questions in the interview rounds. So let's be prepared and not leave a single loophole anywhere. Oh, I'm so sorry about our last 5-minute gyan. This is our trend, so let's not forget, guys, from next time. Okay, so today again I'll pick a question that I think is important. One question that I think everyone must have this in the mind is like about the previous video. Many people thought that I'm telling them to build a website
using Canva or using like Webflow or Framer. Basically मेरा ये कहना था कि people who are not in web development, means people whose development side is not tilted towards web development, who don't know web development much or in depth, so they can build their portfolio using Webflow, Framer, or like if you are totally new, then from Canva. It was like a video for the people to build the portfolio. I'm not telling कि हाँ कोई प्रोजेक्ट है वेब डेवलपमेंट में तो वो कैनवा से कर लिया या फिर वो वेबफ्लो से कर लिया, वो फ्रेमर से कर लिया, फिर तो प्रोजेक्ट होगा ही नहीं वेब डेवलपमेंट में, राइट? वेब डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट करने का मतलब ही ये है कि आपको लाइक वेब डेवलपमेंट के लैंग्वेज आने चाहिए, आपको वेब डेवलपमेंट आना चाहिए, तो आप वो शो कर सकते हो अपने लाइक रिज्यूमे में, प्रोजेक्ट में. बट फॉर द portfolio is as important as our resume these days, so that's why I wanted to tell you, please build a portfolio and keep it aside. And अगर आपका वेब डेवलपमेंट के तरफ नहीं है ज़्यादा कंसंट्रेशन या फिर आप वेब डेवलपमेंट नहीं जानते हो, तो फिर आप लाइक यूज़ कर सकते हो ये सारे टूल्स विच आई हैव मेंशन इन द प्रीवियस वीडियो. सो गाइज डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि मैंने लाइक प्रोजेक्ट के लिए बोल दिया कि आप प्रोजेक्ट बना सकते हो. वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट विल नीड सम कोडिंग एंड बैकएंड का पार्ट एंड एवरीथिंग दैट जो वेब डेवलपमेंट में होती है. एंड अगर आप वो प्रोजेक्ट इंक्लूड करना चाहते हो अपने रिज्यूमे में, सो आई पिक अ क्वेश्चन दैट आई थिंक सम पीपल माइट हैव इट इन देयर माइंड्स. सो लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी कि पोर्टफोलियो आप कैसे बना सकते हो यूजिंग वेबफ्लो, फ्रेमर, कैनवा. एंड मैंने ये भी बोला था पोर्टफोलियो इज एज इम्पॉर्टेंट एज द रिज्यूमे, बिकॉज दीज डेज पीपल डू आस्क फॉर द पोर्टफोलियो ऑफ कैंपस में. अगर आप प्लेसमेंट ऑफ कैंपस अगर आप प्लेसमेंट सर्च करते हो तो लाइक मेरा कहना था कि अगर आपको वेब डेवलपमेंट नहीं आती है, आपका डेवलपमेंट साइड एक्चुअली वेब डेवलपमेंट की तरफ लीन नहीं है, तो आप यूज़ करो वेबफ्लो, फ्रेमर या फिर कैनवा. अगर आप टोटली नूब हो तब कैनवा, नहीं तो नहीं. एंड जो हमारी जो शीट है जो मैंने पिछले वीडियो में शेयर करी है फॉर द कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, वो भी मैंने कैनवा पे इसलिए बनाया है ताकि यू शुड नो कि हाँ कैनवा पे एक्चुअली हम बना सकते हैं वेबसाइट. एंड आई एम टॉकिंग to people who don't know a single line of code in web development. So guys, ये पोर्टफोलियो तक ही था. ऑब्वियसली अगर आपको वेब डेवलपमेंट में कोई प्रोजेक्ट बनाना है जो आप चाहते हो कि आप अपने रिज्यूमे में इंक्लूड करो, तो फिर वो आप वेबफ्लो, फ्रेमर या तो कैनवा से नहीं बना सकते हो. बिकॉज वहाँ पे अगर आप अपने रिज्यूमे में इंक्लूड कर रहे हो तो इंटरव्यूअर या फिर कोई भी इंसान ये एक्सपेक्ट करेगा कि आपको वेब डेवलपमेंट आती है, आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आती है, आपको रिएक्ट आती है. आप अगर बैकएंड उसमें डालना चाहते हो तो बैकएंड का पार्ट भी लाइक आपको आता है, Node.js आता है या फिर जो भी ले लो आप बैकएंड में, तो आपको वो सब चीज़ आता है. दैट मीन्स आपको वेब डेवलपमेंट आता है, तभी आप वो वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे में डाल रहे हो. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर. मैंने जो पिछले वीडियो में बात करी थी दैट वाज टोटली फॉर द पीपल हु डोंट नो वेब डेवलपमेंट एंड वांट टू बिल्ड पोर्टफोलियो. बट द पीपल हु नो वेब डेवलपमेंट एंड उनको काफ़ी ठीक ठाक वेब डेवलपमेंट आती है, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर आपको फ्रंट एंड भी आता है तो प्रोजेक्ट के लिए ऑलवेज प्रेफर कोड वाला पार्ट जो बेसिक वेब डेवलपमेंट में होता है. टॉपिक दैट आई टॉक पिछले वीडियो में वाज फॉर द पीपल हु डोंट नो अ सिंगल लाइन ऑफ कोड or maybe who know very less about web development. Since I myself is lean towards a different side of development but not web development, so I do find it useful for myself, and I wanted to share this with you people who are like me. So don't get confused here. ये बात करना था.
Second, एक और चीज़ that I wanted to talk was I know there are a lot of people जो 1-2 दिन ऐसे skip हो जा रहा है, जिनसे लाइक 1-2 क्वेश्चन या फिर 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है, पूरे 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रहे, वो रूटीन नहीं बन पा रहा है, यू आर बिजी समवेयर एल्स, मे बी इंटर्नशिप में बिजी हैं या फिर मे बी आप किसी प्रोजेक्ट बनाने में बिजी हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ अदर वर्क्स दैट वी हैव टू डू डेफिनेटली. बट गाइज मेक श्योर दैट ये अगर गैप होता है मैक्स टू मैक्स 2 days, 2 days से ज़्यादा गैप ना हो जाए बीच में, और हर एक दिन एटलीस्ट आप बहुत बिजी हो तो भी ट्राई टू डू 2 क्वेश्चंस ऑफ DSA. स्किप कर दिया एंड फिर अगेन जब थर्ड डे बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि यार मतलब अचानक से क्या हो गया, मतलब वो फिर ना वो पेस में आने में फिर टाइम लग जाता है. इवन 2 दिन का स्किप बीच में काफ़ी मैटर कर जाता है. तो मेक श्योर कि आप 1-2 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हो, बट कर रहे हो. आई एम टॉकिंग अबाउट अ डे व्हेन यू आर रियली बिजी इन सम टास्क और द अदर. अगर प्लेसमेंट या फिर इंटर्नशिप क्रैक करनी है तो वी नीड टू गिव अ टाइम एंड मैनेज अ टाइम अकॉर्डिंगली. इट्स ओनली द मैटर ऑफ 2 to 3 months. We need to practice and practice and practice till we get one good opportunity in our hand. Okay, so I'll be ending our video here. Bye bye.